اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے۔ پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا۔ ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینے کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ کعب نے کہا، نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں۔ کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کے واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حیی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ کعب نے پوچھا، تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، معاہدہ نہ توڑو، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، ہاں نعیم، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم رضی اللہ عنہ کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ بولا، تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ نعیم بن مسعود نے جواب دیا، بہت دور سے، جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کروانا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے 2 دوستوں سے ملایا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں پر ہم حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔
अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम नईम, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बनु कुरैज़ा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांध कर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। उसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? नईम बिन मसूद ने कहा, उसकी सोच पर आपने शराब और हसीन लड़कियों का तिलिस्म तारी कर दिया है। क्या शराब और औरत किसी के दिल में खुलूस और दयानतदारी रहने देती है? अबू सुफियान ने कहा, उसे शराब और औरत किसने दी है? क्या बदबख्त काब इतनी सी बात नहीं समझ सका कि मैंने उसके साथ जो मुआहिदा किया है उसमें उसकी कौम और उसके मजहब का तहफ्फुज है? अगर मोहम्मद का मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके। वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो उसके दुश्मन है। हुयई बिन अख्तब भी यहूदी है। उसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहना हालत में उसके पास थी। उसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारते हुए कहा, नईम, मैं मदीने से महासरा उठाकर बनु कुरैज़ा की नस्ल खत्म कर दूंगा। उसकी ये जुर्रत कि कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान। ठंडे दिल से सोचो और फैसला करो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल दोगे कि नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मैं फैसला कर चुका हूँ। क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं हैरान हूँ अबू सुफियान। अहले मदीना खुश और मुतमईन है। वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की जरूरत ही नहीं। अबू सुफियान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे महासरे का उन पर कोई असर नहीं हुआ। नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन पर महासरे का ये असर है कि वो जोश खरोश से फटे जा रहे हैं। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, वो झूठ बोलते हैं। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा न करना। ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं, वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक उबूर कर लो और मदीना पर हमला करो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह करवाना चाहते हैं। अबू सुफियान ने कहा, मैं इनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ। उसने अपने गुलाम को आवाज दी, इक्रिमा और खालिद को बुला लाओ। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहकर चले गए, मैं अपने सरदार गतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और इक्रिमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुताल्लिक क्या बता गए। खालिद बिन वलीद ने कहा, गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनु कुरैज़ा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहमो करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। अबू सुफियान ने पूछा, क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश न करे। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक उबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शबखून मारने का इंतजाम करे। इक्रिमा ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मनसूख कराऊंगा। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मैं भी इक्रिमा के साथ चला जाऊं? इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार जाया नहीं कर सकता। इक्रिमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। इक्रिमा उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु कुरैज़ा तक पहुंचना था। वो जुम्मे की रात और तारीख 14 मार्च 627 ईस्वी थी। जब इक्रिमा खंदक से दूर दूर चलता शेखीन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि इक्रिमा क्यों आया है। काब बिन असद ने कहा, आओ इक्रिमा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। इक्रिमा ने 2 टोक लहजे में कहा, पहले मेरी बात सुन लो काब, मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम महासरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीना में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दोगे। हमें ये भी मालूम हुआ है कि तुमने जाहिरी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा किया है, लेकिन दरपर्दा तुमने वो मुआहिदा कायम कर रखा है
जो मुसलमानों के साथ तुम कर चुके थे। इतने में एक निहायत हसीन लड़की शराब की सुराही और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो इकरिमा को देखकर मुस्कुराई। इकरिमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। इकरिमा ने कहा, काब, तुमने अपना मजहब और अपनी जबान इन चीजों के एवज बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। काब ने कहा, मेरे अजीज इकरिमा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया था वो बनु कुरैज़ा के तहफ्फुज और सलामती के लिए किया था, और मैंने जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर किया है। मुसलमानों को खत्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मुआहिदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीजा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हुयई बिन अख्तब से मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गतफान मुझे बनु कुरैज़ा की सलामती की जमानत दें, ताकि ऐसा न हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम ले लें। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो चिंगारी उन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो इकरिमा के सीने में सुलग रही थी। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इकरिमा के जहन में अबू सुफियान की मारिफत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज सुनते ही इकरिमा भड़क उठा। इकरिमा ने गुस्सैली आवाज में कहा, क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? काब बिन असद ने कहा, मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। मैं एतराफ करता हूँ कि जो अक्ल खुदा ने मोहम्मद को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी जमानत चाहता हूँ। इकरिमा ने पूछा, कहो तुम्हें कैसी जमानत चाहिए? काब बिन असद ने कहा, कबीले कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा इकरिमा, ये हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रिवाज और शर्त से तुम वाकिफ हो। मैंने जमानत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमियों की तादाद नहीं बताई, ये तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे उन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। इकरिमा ने भड़की हुई आवाज में कहा, उन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे, तुम उन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा, क्या कह रहे हो इकरिमा? क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें ये धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीले के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाऊंगा? मुझ पर एतबार करो। इकरिमा ने गुस्से के आलम में कहा, यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो। अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिल एतबार समझते हो तो कल मदीने में उन छोटे कलों पर हमले शुरू कर दो जहां पर मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा हुआ है। काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सबत कहते हैं। उस रोज इबादत के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। कोई यहूदी सबत के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए यहूदा उसे इंसान से खंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। इकरिमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं है। वो शराब पीता चला जा रहा था। इकरिमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया। उसने अबू सुफियान से कहा था कि वो फैसला करके ही वापस आएगा। वो बोला, तुम कल हमला करो या एक दिन के बाद करो, हम तुम्हारी नीयत को अमली सूरत में देखकर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या न दिए जाएं। उससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। काब बिन असद ने कहा, मैं कह चुका हूँ कि यरगमाल के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। जो ही तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुँच जाएंगे हम तुम्हारी मंशा के मुताबिक मदीना के अंदर खलबली मचा देंगे। तुम देखना कि हम मोहम्मद की पीठ में किस तरह छुरा घोंपते हैं। इकरिमा उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम बदतैनत हो। तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं। आओ मिलकर मुसलमानों को मदीने के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दें। काब बिन असद ने इकरिमा का गुस्सा देखते हुए कहा, मुझे अगर हुक्म मानना ही है तो मैं मोहम्मद का हुक्म क्यों ना मान लूं? हम मुसलमानों के साथ रहते हैं। जो तहफ्फुज हमें उनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मौरिख इब्न हिशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम रज़ियल्लाहु अन्हु का छोड़ा हुआ तीर निशाने पे लगा था। इकरिमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकल गया। यहूदियों और अहले कुरैश का मुआहिदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती, काब के घर के अंदर ही टूट गया। जब इकरिमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था उस वक्त नईम बिन मसूद अपने कबीले के सरदार गतफान के पास बैठे हुए थे। उसके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुताल्लिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। अबू सुफियान ने गुस्से में आकर गतफान को बुला लिया। गतफान ने एहनिया से कहा, क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें क्या धोखा दे रहा है?
वो हमसे यरगमाल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है, क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सालार ऐनिया ने कहा, सरदार गतफान, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरे साथ मैदान जंग की बात करो। मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूँ। मुझे उस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे उस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है। और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा कि मुझे अपने कबीले का सरदार गतफान यरगमाल में दे दो, तो क्या मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं? मैं उस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुतालबा करेगा। नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं उन यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बकरी भी न दूं। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। गतफान ने नईम रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अबू सुफियान क्या कहता है? ये बात सुनकर अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा। सालार ऐनिया ने कहा, और इसे इंतकाम लेना चाहिए। बनु कुरैज़ा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद बिन वलीद को आज मदीने की तरफ जाते हुए वो वक्त याद आ रहा था जब इकरिमा बनु कुरैज़ा की बस्ती से वापस आया था। खालिद बिन वलीद दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। उधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता आ गया। इकरिमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। अबू सुफियान ने उससे पूछा, क्या खबर लाए हो? इकरिमा ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जवाब दिया, खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदतैनत इंसान पहले कभी नहीं देखा। खालिद बिन वलीद ने पूछा, क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? इकरिमा ने कहा, हाँ खालिद, नईम ने ठीक कहा था। उसने मुझे शराब की पेशकश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हैं। उसने कहा कि पहले यरगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीना के अंदर शबखून मारूंगा। क्या तुमने उसे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनु कुरैज़ा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में एक चूहे की सी है? क्या तुमने उसका सर उसके कंधों से नहीं उतार दिया? इकरिमा ने कहा, मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था। उसके साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ था वो मैं तोड़ आया हूँ। अबू सुफियान ने दबी दबी आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। और ये कहकर वो परे चला गया। ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था, 1.5-2 साल पहले की बात थी। आज जब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जा रहे थे तो ये जाना पहचाना रास्ता उन्हें अजनबी सा लग रहा था। कभी उन्हें ऐसा महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी हो गया हो। उसे अबू सुफियान का अफसरदा चेहरा नजर आने लगा। खालिद बिन वलीद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीने पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और इकरिमा वहीं खड़े रह गए थे। इकरिमा ने पूछा था, क्या सोच रहे हो खालिद? क्या तुम मेरी तायद नहीं करोगे कि मैं उस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने इकरिमा को जवाब दिया था, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुज़दिल सरदार और कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज्यादा गहरी भी नहीं। हम वहाँ से खंदक पार कर सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी उस जगह से चंद सवार खंदक के उस पार ले जाना चाहता हूँ। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे। इकरिमा ने कहा, मैं तुम्हारा साथ क्यों न दूंगा खालिद। क्या मैं मुसलमानों के उन कहकों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो उस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह ज़बाब की पहाड़ी के मगरिब और सिला की पहाड़ी के मशरक में थी, जहाँ खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमगाह थी। खालिद ने इकरिमा को ये जगह दूर से दिखाई। इकरिमा ने कहा, पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास न जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ न मिलेगा। अबू सुफियान का दिल महासरा उठा चुका था। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। इस्लामिक शोर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।